بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چڑیل کی عجب کہانی۔ اس چڑیل نے لوگوں کو ہر طرح سے ہلکان کر کے رکھ دیا تھا، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ وہ ایک بڑی عمارت تھی جس کو توڑنے کا ٹھیکہ مشہور ٹھیکیدار کمال کو ملا تھا۔ کمال کی رہائش گاؤں میں تھی، لیکن کام کے ٹھیکے وہ شہر میں لیتا تھا۔ کمال کے گاؤں کا نام سنگٹ تھا جو اندرون سندھ میں واقع تھا۔ ان دنوں اسے حیدرآباد میں قدیم عمارت کا ٹھیکہ ملا تھا۔ کوہ نور نامی یہ عمارت بہت ہی خستہ ہو چکی تھی اور رہائش کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ عمارت 4 منزلہ تھی جس میں ہر فلور پر کئی کمرے تھے جن میں مختلف فیملی کرائے پر رہ رہی تھی۔ کوہ نور عمارت کے کرائے دار وقت کے ساتھ بدلتے رہتے تھے، اس طرح اس عمارت کے مالکان بھی تبدیل ہو جاتے تھے۔ سجاد کا شمار شہر کے اچھے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ جب ان کے پاس یہ عمارت آئی، اس عمارت کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ کمروں کی چھتوں کا پلاسٹر خراب ہو چکا تھا، آئے دن چھت سے پلاسٹر کا حصہ گرتا رہتا تھا۔ ماضی میں لوگوں نے اس عمارت کا تھوڑا بہت کام ضرور کروایا تھا، لیکن سنجیدگی سے اس عمارت پر توجہ نہ دی تھی، جس کا نقصان یہ ہوا عمارت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی۔ سجاد ایک سمجھدار شخص تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عمارت کے کسی مکین کو کسی قسم کا جانی مالی نقصان پہنچے، اس لیے عمارت کو کرایہ داروں سے خالی کروا کے دوبارہ تعمیر کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گاڑی خطہ حیدرآباد کا معروف ترین علاقہ ہے۔ شہر میں اس علاقے کی کاروباری حوالے سے بڑی اہمیت ہے۔ اس عمارت کے بن جانے پر عمارت کا کرایہ بھی اچھا ملتا رہا۔ فلیٹ تیار کر کے بیچنے پر بھی اچھی خاصی کمائی ہو سکتی تھی۔ اس کا ارادہ فی الحال عمارت کو تعمیر کر کے فلیٹ کرائے پر دینے کا تھا۔ اس نے ٹھیکیدار کمال کو جو جلدی عمارت کو توڑ کر میدان صاف کر کے میدان کرنے کا ٹھیکہ دیا تھا، لیکن پھر اس کے کام کی رفتار سے خوش ہو کر نئی عمارت کی تیاری کی بنیاد کھودنے کا ٹھیکہ بھی کمال کو ہی دے دیا تھا۔ ٹھیکیدار کمال کے پاس عمارتیں مسمار کرنے کے لیے کئی ٹھیکے ہوتے تھے، اس لیے وہ زیادہ لیبر لگا کر اپنا کام جلد مکمل کر لیتا تھا۔ شام کا وقت تھا، ٹھیکیدار کمال اپنے دوسرے کاموں سے فرصت ملنے پر وہ عمارت کے کام کا جائزہ لینے آیا تھا۔ ارے یہاں کچھ ہے، ایک مزدور بولا۔ ٹھیکیدار بھی اس کی آواز پر چونکا اور وہاں پہنچا۔ مزدور اپنی کھدال کو ایک طرف رکھ کر مٹی کو ہٹانے لگا تھا۔ مٹی ہٹانے پر وہاں ایک بڑا صندوق نظر آیا۔ صندوق دیکھ کر ٹھیکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس سے قبل بھی کئی عمارتوں کی کھدائی میں اسے چھوٹے چھوٹے صندوق ملے تھے جن میں سونا اور سونے سے بنے زیورات ملے تھے، اس لیے ٹھیکیدار کمال عمارت کا ٹھیکہ مل جانے پر عمارت کے مالک سے کھدائی کرانے زمین کھود کر اپنی دولت اس میں چھپاتے تھے۔ جب ٹھیکیدار کمال نے ٹھیکیداری کا کام شروع کیا، یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ واقعی پہلے لوگ اپنی دولت زمین کے اندر چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ ٹھیکیدار کمال نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، اس سے قبل کسی اور کی نظر میں آئے۔ اس نے مزدور کو صندوق کے پاس سے کام کرنے سے روک دیا اور دوسری جگہ کام پر لگا دیا۔ ٹھیکیدار کمال کو اب رات ہونے کا انتظار تھا۔ اس نے 2 مزدوروں کو بہانے سے روک کر سب کی چھٹی کر دی۔ جب رات ہو گئی اور لوگوں کی اس جگہ آمد و رفت ختم ہونے کے برابر رہ گئی، اس نے وہ صندوق نکلوایا اور اپنی گاڑی میں رکھوا دیا۔ مزدوروں نے اسے صندوق کھول کر دیکھنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں کسی کی سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا اس صندوق میں ضرور ہیرے جوہرات یا سونا ہوگا۔ مزدوروں کے سامنے صندوق کھولنے پر یہ بات پھیل جانے کا خطرہ تھا۔ عمارت کا مالک اس مال پر اپنا حق ثابت کرتے ہوئے اس سے صندوق حاصل کر سکتا تھا۔ حکومت کے افسران کے علم میں صندوق کے بارے میں علم ہو جانے پر وہ صندوق کو سرکاری خزانے میں شامل کر لیتے۔ صندوق کو بند حالت میں لے جانے پر یہ فائدہ تھا، اس سے مال نکال کر وہ کچھ بھی کباڑ ڈال دیتا۔ ٹھیکیدار نے وقتی طور پر ان دونوں مزدوروں کی زبان بند کرنے کو کچھ رقم دے دی تھی اور ان کو زیادہ کام دلانے کا وعدہ کر لیا تھا، اس شرط پر کہ
वो अपनी जुबान बंद रखेंगे। ठेकेदार रात में गांव नहीं जाता था। इस संदूक की वजह से इसने रात में सफर करने का इरादा कर लिया था। रात में वो सफर करता हुआ घर पहुंच गया। वो बहुत खुश था। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। तमाम रास्ते कई बार इसके दिल में आया वो संदूक को खोलकर देख ले, मगर इसने इरादा मुलतवी कर दिया। गांव में घर पहुंचकर ठेकेदार कमाल ने वो संदूक मुलाजमीन को बुलाकर अपने खास कमरे में रखवा दिया। वो संदूक को खोलकर देखने के लिए बेचैन था। इसने रात 1 बजे तक खुद पर कंट्रोल रखा। घर के सब लोगों के सो जाने पर वो अपने इस खास कमरे में गया। संदूक पर एक मजबूत सा ताला लगा हुआ था जो वक्त के साथ जंग आलूदा हो चुका था। एक हल्की सी चोट पर खुल गया। ठेकेदार कमाल के चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी। वो इस संदूक को पाकर बहुत खुश था। इसने एक झटके से संदूक का ढक्कन खोल दिया। संदूक खुलने पर इसका चेहरा फुक हो गया। इसमें हीरे जवाहरात और सोने की बजाय एक औरत की लाश रखी थी। वो लाश बिल्कुल तरोताजा लग रही थी, जैसे अभी अभी इसमें उसे रखा गया है। उसकी अकल काम नहीं कर रही थी। जिस इमारत को इसने मसामार किया है, इस इमारत को 100 साल से ज्यादा अरसा कबल तमीर किया गया है। इसकी बुनियादों में एक लाश को दफन किए जाने पर वो कैसे इतना अरसा गुजर जाने पर तरोताजा रह सकती है? ये नामुमकिन सी बात थी, लेकिन इसके सामने खुदाई करते हुए ये संदूक बरामद हुआ था। अभी ठेकेदार कमाल इस लाश और संदूक के बारे में मेन कुछ फैसला भी ना कर पाया था कि लाश ने आंखें खोल दी। इस लाश के जिंदा हो जाने पर बेअख्तियार इसके मुंह से चीख निकल गई। ठेकेदार कमाल एक मजबूत असाब का मालिक था, लेकिन 100 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी लाश का जिंदा हो जाना इसे खौफ सदा कर गया था। इसके मुंह से चीख भी निकल गई थी। लाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो ठेकेदार कमाल को खौफ सदा देकर मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया है। मैंने कैसे? ठेकेदार कमाल बुखलाया हुआ था कि मैं इतना अरसा गुजारने पर दोबारा से कैसे जिंदा हो गई हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं बहुत ताकतवर शक्ति की मालिक थी। शैतानी अमलियात करने वाले लोग मुझसे मुश्किल काम करा लेते थे और इंसानों को तरह तरह से नुकसान पहुंचाते थे। एक आलम ने मुझे अपनी पढ़ाई से काबू किया और इस संदूक में कैद करके जेरे तमीर इमारत में दफन कर दिया था, ताकि कोई काला इल्म करने वाला शख्स मुझे जमीन की कैद से हासिल करके काले अमल को इस्तेमाल ना कर सके। इमारत के तमीर हो जाने पर कोई जादूगर मुझे हासिल न कर सका। बरसों गुजरने पर इमारत के मसामार किए जाने पर मैं फिर से आजाद हो गई हूँ, वो कहका लगाते हुए बोली। ठेकेदार कमाल गुमसुम उसे देख रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे फिर से अपनी सरगर्मियां जारी रखने को इस वक्त खून की अशद जरूरत है और मैं आज अपने मौसम के खून से खुद को सैराब करूंगी। नहीं, ये कहते हुए इसने भागना चाहा। चुड़ैल ने लपक पकड़ लिया। इसने खुद को चुड़ैल से छुड़ाना चाहा, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो कोशिश के बावजूद खुद को इससे छुड़ा ना सका। चुड़ैल ने इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए और उस वक्त तक ठेकेदार कमाल को नहीं छोड़ा जब इसके जिस्म में कमाल का सारा खून चुड़ैल के जिस्म में दाखिल नहीं हो गया। ठेकेदार कमाल के जिस्म से खून निकल जाने पर वो मुर्दा हालत में जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल ने इसके मुर्दा जिस्म को एक नजर देखा और बोली, मेरे मौसम, मैंने सख्त मजबूरी की हालत में ये इकदाम किया है। मुझे संदूक से बाहर निकलते ही फौरन खून पीना था, वरना मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाती। मैंने खुद को जिंदा रखने की खातिर ये इकदाम किया है। ये कहते हुए चुड़ैल कमरे से बाहर निकल गई। सुबह होने पर ठेकेदार कमाल की लाश कमरे से मिलने पर सब हैरान थे। कमरे में रात कोई नहीं आया, फिर वो कैसे मर गया? इसका जिस्म देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके जिस्म से खून का एक कतरा तक निचोड़ लिया गया है। इसकी गर्दन पर दांतों के निशानात भी थे। इसका मर जाना सबके लिए पुरस्कार बन गया था। किसी को भी नहीं पता चला कि इसको चुड़ैल ने हलाक किया है। किशन चंद गांव का रहने वाला था। संकट में इसके काले इल्म की बहुत शोहरत थी। काला इल्म कराने को दूर दूर से लोग आते थे। इसे अपने एक खास मकसद को हासिल करने की गरज से एक ताकतवर असेबी कुव्वत की जरूरत थी। इसने कुछ पढ़कर एक पानी के बर्तन पर फूंका। पानी के बर्तन में एक खौफनाक चुड़ैल का अक्स नजर आ गया। उसे देखकर किशन चंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ये मेरा काम करेगी। ठीक है, मैं इसको बुला लेता हूँ। ये कहते हुए वो फिर एक अमल करने लगा। अभी कुछ देरी हुई थी कि एक चुड़ैल इसके सामने हाजिर हो गई। मुझे क्यों बुलाया है? वो गुस्से से बोली।
तुम से मुझे कुछ काम लेना है, तुम मेरे बहुत काम आ सकती हो। क्या काम लेना चाहते हो? चुड़ैल ने हैरानी से इसको देखा। एक काम बहुत जरूरी है, इसके अलावा दीगर मुश्किल काम भी तुमसे लूंगा। कामों की तफसील वक्त आने पर बता दूंगा। मुझे क्या फायदा होगा? चुड़ैल ने किशन चंद को घूर कर देखा। मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा। अभी तुम डर डर कर इंसानी खून पी रही हो। मेरे तिलिस्मी पुतले तुम्हारे साथ होंगे, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कोई इंसान तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे तिलिस्मी पुतले उससे डराकर भगा देंगे। मुझे पहले भी चंद बुजुर्गों के कहने पर एक अमल ने हमेशा के लिए सुला दिया था और मेरे सो जाने पर संदूक में बंद करके जमीन के अंदर दफन कर दिया था। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे तिलिस्मी पुतले सब खबर देते हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। ये भी बताया था कि तुम मेरे किस काम आ सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें काबू किया है, जादूगर ने बताया। चुड़ैल ने किशन चंद की इजाजत मिलने पर गांव में अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। वो पहले कब्रिस्तान में जाकर छोटे बच्चों का खून पीती और कलेजी खाती थी। अब रात में वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी थी। गांव के घरों में बच्चे ज्यादातर सहन में सोते थे, इसलिए वो किसी भी घर में दाखिल होकर बच्चे को उठाकर ले जाती थी। सुबह सवेरे लोगों को बच्चे की लाश मिलती थी। बच्चों के अगवा होने और इनकी लाश मिलती थी। बच्चों की लाशें मिलने पर गांव में खौफो हर्ष फैल गया था। गांव के लोगों ने बच्चों को सहन में सुलाना ही छोड़ दिया था। चुड़ैल फिर भी अपनी कार्रवाई करने में कामयाब हो जाती थी। कई नौजवानों ने गांव में रात में सख्त पहरा देकर चुड़ैल को पकड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन जादूगर के तिलिस्मी पुतलों ने इन नौजवानों की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। वो नौजवान हैरान थे कि चुड़ैल के साथ ऐसी कौन सी मखलूक है जो नजर भी नहीं आती और इनकी पिटाई भी कर रही है। नौजवान की पिटाई होने पर इनके हौसले जवाब दे सकते और रात में गांव के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। रात की तारीकी में चुड़ैल एक बच्चे को अगवा कर ले जा रही थी। अचानक एक बुजुर्ग आदमी सफेद लिबास में इसके सामने आ गया। छोड़ दे इस बच्चे को, वो जोर से चीखे। ये मेरा शिकार है, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है तूने गांव वालों की जिंदगी अजरीन कर दी है। तेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं। इससे कबल भी मुझे जमीन के अंदर हमेशा के लिए सुला दिया था। देख लो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, कौन मुझे जिंदा जलाएगा? वो भी जोर से चीखी। जिस जादूगर किशन चंद पर तू अकड़ रही है, इसका अंजाम भी तेरे जैसा कर दूंगा। बुजुर्ग जिनका नाम आमिल नसीरुल दीन था, वो गुस्से से बोले, पहले किशन चंद के तिलिस्मी पुतलों से तो निमट ले, फिर किशन चंद तक जाना। चुड़ैल ने दहशत ज़दा लहजे में कहा। तिलिस्मी पुतले बुजुर्ग आमिल नसीरुल दीन की जानिब बढ़े। आमिल नसीरुल दीन ने इन पर फूंक मारी, जिससे तिलिस्मी पुतले राख के ढेर में तब्दील हो गए। इनकी हालत देखकर एक लम्हे को चुड़ैल के चेहरे पर घबराहट तारी हुई। फिर वो बोली, ये किशन चंद के तिलिस्मी पुतले थे जिनको तूने राख के ढेर में तब्दील किया है। अब तेरी खैर नहीं है, चुड़ैल ने कहा। आमिल नसीरुल दीन ने अपने हाथ में तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ते हुए चुड़ैल पर फूंका। अचानक से चुड़ैल के जिस्म में आग लग गई। वो चीखने चिल्लाने लगी। उस वक्त किशन चंद भी वहां पहुंच गया और उसने कुछ पढ़कर चुड़ैल के जिस्म पर फूंका। चुड़ैल के जिस्म में लगी आग बुझ गई। देख बूढ़े, तेरी आग को किशन चंद ने कैसे बुझा दिया है। चुड़ैल खुशी से चहकी। आमिल नसीरुल दीन ने किशन चंद पर पढ़कर कुछ फूंका। किशन चंद के जिस्म में आग लग गई। किशन चंद ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हो सकी। किशन चंद को जलता देखकर चुड़ैल का चेहरा फुक हो गया था। किशन चंद जल रहा था और चुड़ैल बेबसी से उसे देख रही थी। देख ले किशन चंद का अंजाम जिस पर तू अकड़ रही थी। मुझे गांव में तुम्हारी कार्रवाइयों की खबर हो गई थी, लेकिन मुझे दूसरे जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए गांव में आने में देर हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं गांव छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए तुम्हारी खुराक इंसानी खून और कलेजी है। इस गांव से जाकर किसी और गांव में यही कार्रवाई करे। ये कहते हुए आमिल नसीरुल दीन ने चुड़ैल पर कुछ पढ़कर फूंका। इसके जिस्म में आग लग गई। वो चीखती चिल्लाती आग में जलती रही। कुछ देर जलकर वो राख का ढेर हो गई। चुड़ैल जिस बच्चे को अगवा करके लाई थी, वो अभी तक बेहोश था। आमिल नसीरुल दीन ने बच्चे पर कुछ पढ़कर फूंका। बच्चा होश में आ गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। घबराओ नहीं, तुम्हें चुड़ैल ने अगवा कर लिया था, आमिल ने इसे बताया।
चुड़ैल ने मुझे अगवा कर लिया था। बच्चा पूरी तरह से चौंका। हाँ, लेकिन मैंने चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया है। अब गांव वालों को चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है, आमिर नसीरुद्दीन ने बताया। मैं छत पर किसी काम से गया था, पता नहीं चला कि कैसे चुड़ैल ने मुझे बेहोश करके अगवा कर लिया। बच्चे ने तफसील से बताया। आओ मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, आमिर नसीरुद्दीन ने कहा। वो बच्चा इनके साथ चल दिया, लेकिन इसके चेहरे से अभी तक घबराहट खत्म नहीं हुई थी। आमिर नसीरुद्दीन जब बच्चे को इसके घर लेकर गए, इसके वालिदैन बच्चे को देखकर खुश हो गए। वो इसकी गुमशुदगी पर बहुत परेशान थे। सुबह होने पर गांव में चुड़ैल और किशन चंद जादूगर के जलकर भस्म होने की खबर हो चुकी थी। आमिर नसीरुद्दीन पहले इस गांव में ही रहते थे। चंद साल कबल वो पंजाब के एक गांव गुजरांवाले गए थे, तो फिर वापस नहीं लौटे थे। इनका इरादा चंद माह और वहाँ रहने का था, मगर इनको गांव में चुड़ैल के आने और किशन चंद की सरगर्मियों की खबर हो चुकी थी, इसलिए वो गांव आ गए। गांव में आते ही इनका सामना चुड़ैल से हो गया, जो बच्चा अगवा करके लाई थी। जादूगर किशन चंद और चुड़ैल दोनों ही अपने अंजाम को पहुंच गए थे। गांव वालों ने इन दोनों के हलाक हो जाने पर सुकून का सांस लिया था। बच्चों के वो वालिदैन जो बच्चों के अगवा होने की वारदातों पर बहुत फिक्रमंद थे, वो आमिर नसीरुद्दीन के गांव आ जाने से बहुत मुतमिन हो गए थे। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।